Good evening, all of you, especially Aarti madam, Yes, Vaishali good madam, evening, sir. and thank you, ma'am. And of course, Rahul. So, today is the 60th class of our German language, and this is the closing class as far as whatever we have previously decided. So, just wanted to give you brief detailing why we started, what all we covered. That will be, of course, told by the Aarti madam, and then what was the intention. First and foremost, intention. Okay, good evening, Arnav. I'm Santosh Takle. You have joined. We have started just now. The initial 1 minute or so will be taken by me, then Aarti madam will continue. So I was talking to you that 14th of the May 2021, we started with this online German session. Similar sessions for the Japanese language, English language, Marathi language, we started. The intention was obviously to make the education or learning process keep alive during the that corona period. Obviously we were also conducting some classes from the nursery to the 12th online way. Everywhere the intention was not to make money, and neither we were charging very high. Our intention was very clear. We should not be too much loaded with the money factor of it, so something should come from the students. Here we also followed the same principle, but now today just wanted to clarify that this 60 lectures, when we close today, this 60 lecture will be free asset available on internet. Everybody can use it anytime as and when required. That is the beauty of this IT period era, 21st century. And just wanted to thank Aarti madam specially, because she has given almost 2 and 2.75 or something like that, almost 32 months when she was actually busy with her PhD. So, thank you so much, madam, for your dedicated efforts to teach people whatever you have learned during your education process with interest of your own. So, we and your complete team of the learners in future from these German classes will be indebted to you. I'll not take much of your time. I'm Santosh Takle. You can be in touch with me by searching Santosh Takle on internet. We keep doing such and similar many projects like spreading knowledge of scientific things, including astronomy, certain other things like a sky observation, and so many things. So we'll be in touch for the future. Thank you very much, madam. You can continue. All the best for future journey of all the students as well as the upcoming PhD final viva and other things of Aarti, madam. Thank you so much. Good day. Bye bye. Thank you, sir. Okay. Yeah, hi, good evening. I'll share the slide. Please let me know whether it is visible or not. Ja, guten Abend und frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Heute ist Weihnachten. Was bedeutet Weihnachten? Ja, any guesses? Nein. No, actually, sir said about my viva for my PhD. That was another topic. Not all of, not like in this class, like not German viva. Yeah, so don't worry. Okay, so frohe Weihnachten. Was ist heute? What do we celebrate on 25th December? Yeah, Christmas. Yeah, so Weihnachten bedeutet Christmas. So frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. So was bedeutet ein gutes neues Jahr? So Merry Christmas and a very Happy New Year. Yes, very good.
So now, with respect to Weihnachten, these are some things which are used or which are utilized during Weihnachten period or Christmas period. So please try to read and guess the meaning of those things. The first and most important thing is der Weihnachtsbaum. Was bedeutet der Weihnachtsbaum? Along with that, there is one picture. So what does it depict? क्रिसमस ट्री रिश्तेश वेरी गुड अभी आप लोग एक एक करके एक एक चीज पढ़ते जाओ फिर उसका मीनिंग बताते जाना ओके सो गेस करते जाना सॉरी मैं पढ़ लेती हूँ आप गेस कर लो दी वाइनाक्स that is used for decoration of Weihnachtsbaum. Okay, no problem, Rahul. You can just type the message then. The ball, Rishtish. So the balls which are used for decorating a Christmas tree, Weihnachtskugel. Then the Kerze, we have come across this word earlier also. The Kerze, candles, Rishtish. Der Schneemann, der Schneemann, a snowman. Das Rentier, ja, richtig, Reindeer. Und dann der Weihnachtsmann, Santa. Das Weihnachtsgebäck, from the picture if it is clear. Nine. Those are cookies, Christmas cookies. Then their Advent card, Kranz, the Weihnachtsgebäck is Christmas cookies. Their Advent cards, that is also used for decoration of Christmas tree. जो फ्लावर बेड बनाते हैं सर्क्यूलर फॉर डेकोरेशन जो एक क्रिसमस ट्री पे या डोर्स पे लगाते हैं यूजुअली दैट इज एडवेंट स्क्रांस ओके जैसा थोड़ा सा पिक्चर में वो एकदम क्लियर नहीं है बट यू कैन इमेजिन जब आप लोगों ने कोई इंग्लिश मूवीज या ऐसे देखा होगा तो क्रिसमस का जो एक सर्कल होता है फ्लावर का बेड होता है वो लगाते हैं डेकोरेशन के पर्पस के लिए वो है एडवेंट स्कार देन देर स्टेन star. The Geschenke, we have come across this word also. The Geschenke, gifts, richtig. The Glocken, the Glocken, bell, ringing bell. Again used for the decoration purpose. Das Engelchen, angel. Correct. So all these words we can use. Yes, fairy or angel. We can use with reference to Christmas oder Weihnachten. So heute ist Weihnachten. Zum wishing purpose के लिए we can use frohe Weihnachten. Okay, now coming back to our syllabus. ये हम लोग थोड़ा सा कर चुके थे जो हमने 60 लेक्चर्स में ओवरऑल पढ़ा है उसमें से थोड़ा सा बता देती हूँ उन्हीं का हम लोगों ने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में रिवीजन स्टार्ट किया था सो व्हाट वी हैव डन इज एक तो पार्ट था जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था कि हम खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे फिर जो बेसिक चीजें होती है जैसे अगर आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो बसेस टिकट और इनके सब के बारे में हमने थोड़े थोड़े वर्ड्स पढ़े थे और एकदम बेसिक लेवल का ग्रामर पढ़ा है जिसमें आप कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इवन इफ यू डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड यू कैन एटलीस्ट लाइक गेस द मीनिंग और वहां पे कुछ ना कुछ वर्ड एडजस्ट करके
थोड़ा सा मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और जो बेसिक होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस, ये पढ़े हैं। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं वो वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। वर्ब्स पढ़े हैं अलग अलग, और फिर कौन से वर्ब के साथ कैसे होता है, फिर उसमें ब्रेकेबल वर्ब्स पढ़े हैं कि जो जैसे अनकाउफिन होता है कि वर्ब को आधे से बीच में कट करके हम लोग उसका एंड वाला पार्ट लेते हैं। बेसिक ग्रामर में पहले हमने ये देखा था कि वर्ब का पोजीशन कहाँ पे होता है आपके सेंटेंस में। देन वी हैव स्टडीड अबाउट मोडाल वर्बन। मोडाल वर्बन मतलब जो हेल्पिंग वर्ब जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, सिमिलर वर्ब्स हमने ऐसे 6 पढ़े थे इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो उनका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा था। फिर ही शी इट के लिए हम लोग कैसे कैसे वर्ड यूज करेंगे। थोड़ा सा जो जर्मन लैंग्वेज का अलग है, दैट इज देर दी und das। तो ये देर दी दास के ऊपर डिपेंडेंट पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग अगर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो जो भी चीज के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, क्या उसके पहले मतलब क्या वो चीज देर से जुड़ी है, दी से जुड़ी है, या दास से जुड़ी है, इसका हमने देखा है पहले कि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड। उसका वर्ब कैसे चेंज होगा या उसका पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, सब बेसिक हमने ग्रामर के पार्ट में कंसिडर किया था। और वोकेबुलरी में जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस में से हमने वोकेबुलरी के बारे में देखा था। तो नाउ या ये कुछ छोटे छोटे डायलॉग्स है। आई थिंक हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। या नाउ कमिंग टू दिस, दैट ये एक छोटा सा डायलॉग है जिसमें आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस विद सम मीनिंग, लाइक हेलो क्लाउस वो बिस्ट डू। So, do you guess, remember the meanings of this? Hello, Klaus, वो bist du, what's better? हाँ, फिर हमने क्वेश्चन फ्रैगन के टाइप्स किए थे। जो जैसे इंग्लिश में हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस यूज करते हैं, वर्बल क्वेश्चन एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पे भी मतलब येस नो क्वेश्चन एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वैसे ही सिमिलरली हमने यहाँ पे भी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा उसका रिवीजन भी किया था। तो जो डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो हिल, वी, ये सारे वर्ड्स हमने देखे थे। तो उनका अलग अलग मीनिंग होता है, वो कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो भी थोड़ा देख चुके हैं हम लोग। सो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। हेलो क्लाउस वो बिस्ट डू। सो नाउ जैसे यहाँ पे है सिमिलरली, आपको नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में गेस करते जाना है कि फर्स्ट सेंटेंस का ये हो गया, सेकंड सेंटेंस का वो, अब यहाँ यहाँ से हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं। वो मार्क्स टू डू, वो कॉमन जी, वो हाइसिन जी, वो जिंड जी, वो हाइस्ट डू, वो माखन जी, वो कॉम्स डू। तो इसमें से ये सारे ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पे फिट होगा। एक तो हमें चेक करना है ग्रामेटिकली कहाँ से फिट होगा, और दूसरा उसका मीनिंग। अब मीनिंग तो हमें कुछ ऐसा पैराग्राफ नहीं दिया है कि किसके रेफरेंस में तुम लोग मीनिंग लिख सकते हो, बट ग्रामेटिकली और थोड़ा लॉजिकली कौन सा जाएगा वो इस्तेमाल करके यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। So please try to complete all the sentences. Then we will read or write. Like Rahul, you can write the sentence directly write the answer in the chat box. Okay, so please try to complete it in your notebook. Then we'll read it together.
Done? Yeah. Okay. Okay. So, Arnav, can you read second sentence? Yes, Arnav. Or you can also, if you want, you can also write that hello, Frau Zoprana, wo dash dash. So, what will fill that gap? First B वाला आंसर क्या रहेगा? Okay, wo comes to do. Uh, from where? तो यहाँ पे ना एक तो हम लोग जहाँ पे कॉम्स टू डू के पहले ना वो हेर कॉम्स टू डू ऐसा यूज होता है। हाँ, बी का करेक्ट राहुल जिंड जी आएगा। करेक्ट। और एक तो कॉम्स टू डू इसलिए आएगा क्योंकि नहीं आएगा क्योंकि वोहेर कॉम्स टू डू ऐसा यूजुअली होता है, वो कॉम्स टू डू ऐसा लेस फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। और दूसरा क्योंकि फ्राउ जोप्राना है ना वहां पे, सो वेन एवर वी आर गिविंग लाइक फ्राउ जोप्राना इज अ थर्ड पर्सन, राइट? हमारा दोस्त या हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे नहीं है। फ्राउ जोप्राना इज समवन एल्डर देन अस, तो वहां पे या हम लोग उनको रिस्पेक्ट देके बोल रहे हैं तो जी का यूज करना पड़ेगा हमें। तो या तो वो कॉमन जी ऐसा हो जाएगा अगर आपको करना ही है तो कॉम के साथ।
बट द करेक्ट आंसर इज वो जिंड जी, मतलब वेर आर यू, ऐसा वहां पे हम लोग पूछना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में था हालो क्लाउस वो बिस्ट दू, सिमिलरली फ्राउ जोप्राना वो जिंड जी। ओके क्योंकि मतलब फ्राउ जोप्राना करके है तो जिंड जी हो जाएगा। यहाँ पे क्लाउस इज समवन वी नो, वी आर फ्रेंड्स विथ, तो इसलिए यहाँ पे वो बिस्ट दू आ गया था। नाउ नेक्स्ट इज सी। सी का आंसर अर्नव यू कैन ऑल्सो राइट एंड राहुल एनी वन कैन राइट। Ich heiße Nolte und wie? Okay, Arnav, please write your answer also. What do you think? Same, yeah. So अभी यहाँ पे first is ich heiße Nolte und wie heißen Sie? Und ich heiße Ralf und wie? फोर्थ डी का मतलब कैसे भी हम लोग एक्सचेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पे। und wie heißen Sie oder wie heißt du? अब मतलब यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं रहेगा हमारे पे कि heißen Sie लिखना है या heißt du लिखना है, बिकॉज वी डोंट नो कि हम लोग किसके बारे में, सामने हमारे कौन है, वो सिर्फ वर्ड से हमें पता नहीं चल रहा है। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट इन बोथ सेंटेंसेस। ओके, क्योंकि पहला सेंटेंस जो है उसमें बस हम खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और सेकंड में हम लोग सामने वाले को पूछ रहे हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आप जब जाओगे सामने किसी से बात कर रहे हो तब आपको पता चलेगा कि क्या वो दोस्त है या कोई अननोन व्यक्ति है जिसको आप रिस्पेक्ट देके बात कर रहे हो। सो आइदर अकॉर्डिंगली यू कैन यूज वी हाइसन जी और वी हाइस्ट डू। नाउ नेक्स्ट इज हेयर नॉल्टर वन डैश डैश, सो वन यहाँ पे क्या आएगा? Okay, wann kommen Sie und Arnav? Okay, wann magst du? Okay. Was bedeutet wann? When. So, when are you coming? ऐसा हो जाएगा। und machen का मीनिंग क्या होता है? Machen is to do something. So, when and do ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए Herr Neuter, one common Z is richtig. ओके, अगर नेक्स्ट जैसे सेंटेंस है उन जारा वन, एफ का आंसर क्या आएगा? अर्णव समझ में आया यहाँ पे कॉमन जी क्यूब करेक्ट आंसर है। हाँ, और जो एफ है उसका आंसर आएगा कॉम्स्ट डू, बिकॉज उन डू सारा वन कॉम्स डू। अब सारा हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं उस लड़की का नाम, तो वी कैन डायरेक्टली यूज कॉम्स्ट डू। वेरी गुड। अब जो दो बचे हैं वो फ्राउन ऑल वास, हाँ फ्राउन ऑल है, फ्राउ और हेर हम लोग कब यूज करते हैं? जैसे यहाँ पे हेर नॉल्टर यूज किया था, यहाँ पे फ्राउ जोप्राना यूज किया था, यहाँ पे फ्राउ नॉल है, तो इसलिए फ्राउ नाल वास माखन जी और वानेसा वास मार्क्स डू। ओके, तो ये एक्सरसाइज बस इसी चीज के लिए है कि आपको जो क्वेश्चन का मतलब जो डब्ल्यू एच वर्ड यूज किया है वो वान वास, इनका मीनिंग वी, इनके मीनिंग्स कैसे और उसके साथ कौन सा वर्ब जाएगा नॉर्मली, एंड देन द सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका पर्सनल प्रोनाउन जो होगा उसके साथ आपका वर्ब कैसे चेंज हो रहा है। हमने ये भी देखा था कि मेन तो जो इंग्लिश में लेस कॉमन है और जर्मन में एकदम फर्क जैसा है, वो ये होता है कि वर्ब का कॉन्जुगेशन। राइट, हम लोग इंग्लिश में ऐसे वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ते, और जर्मन लैंग्वेज में ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी वर्ब का कॉन्जुगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नया वर्ब आप लोग जब पढ़ते हो
तो इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक इट्स कॉन्जुगेशन ऑल्सो कि वो इश के साथ कैसे काम करेगा, दू के साथ कैसे काम करेगा, जी के साथ कैसे काम करेगा। ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती है इसमें कि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप लोग उसका डायरेक्टली यूज कर रहे हैं कहीं पे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा पूरा, इफ हमने वो चेंज ही कर दिया कि वर्ड कहाँ का कहाँ पे बिठा दिया तो। ओके, देन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वास्ट पास्ट निश्ड, दैट इज जस्ट फॉर वोकेबुलरी। तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल में जो दिया है वेटर, दैट्स वेटर कैन आइदर बी टोल्ड प्रीमा हेरलिश, मतलब वेटर के साथ सिंपथिश, ऐसा वेटर वेदर कभी सिंपथेटिक नहीं हो सकता। फिर बाकी के जो चीजें हैं कि एकदम स्प्लेंडेड है, अच्छा है, प्राइम है, एकदम मस्त है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट सिंपथिश नहीं रहेगा। ऐसा हम लोग यूज वर्ड नहीं कर सकते, वर्ड हम लोग यूज नहीं करते विथ वेदर, इसलिए वो मतलब ऑड मैन आउट है इन शॉर्ट। लॉइटर, लॉइटर मीन्स पीपल, सो पीपल कैन बी इंटरेसेंट, सिंपथिश, नेट और कपुट। तो सिंपथिश, नेट, इंटरेसेंट सब हो सकते हैं। कापुट इज, कापुट का मीनिंग याद है? ब्रोकन। सो ब्रोकन कभी भी नहीं हो सकते लॉइटर, वो फ्रेंडली हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कापुट आएगा। तो सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट फॉर sorry, for the rest of the things you have to complete in a similar way, so you can just take a screenshot and complete it afterwards. That's just for vocabulary, so you can google the meaning of the like translation, you can use that German to English, and then you can guess which one can be out from the list. Okay, ये हो गया था हमारा। या ये हम लोगों ने एकदम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन का है। तो यू कैन जस्ट रिवाइज इट, दैट गुटन टाग माइन नाम इस्ट मायर। सो यू कैन जस्ट पुट योर नेम, कि आपका नाम, आपका अगर कहीं पे जा रहे हो इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो खुद का इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। तो फिर माइन फोर नाम, फिर दूसरा और एक वर्ड हमने पढ़ा था, याद है आपको? फोर नाम के साथ वाज बेडॉटेड फोर नाम। या फर्स्ट नेम, उन दूसरा क्या होता है लास्ट नेम के लिए, कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? नाक नाम, sehr gut, richtig। तो यहाँ पे हमने ऐसा एक मतलब ये कंप्लीट किया था एकदम पहले इनिशियल लेक्चर्स में, हमने किया था कि गुटन टाग माइन नाम इस्ट मायर, तो हमने खुद का नाम बता दिया। फिर दूसरा ये कॉन्वर्सेशन हमने कंप्लीट किया था। सो यू कैन ट्राई दिस अगेन लाइक फॉर रिविजन, कि आप लोग कैसे इसमें डाल सकते हो। फिर सेकंड सेंटेंस कौन सा आएगा, मान लो ये ए बी सी डी ऐसा है, तो यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स ए बी सी डी में से कौन सा आ सकता है। द फर्स्ट वन विल बी बी, लाइक गुटन टाग माइन नामो इस्ट मायर। इसके बाद सेकंड क्या आएगा? फोर्थ गुटन टाग हेर मायर हाइसन जी हंस मायर। देन नेक्स्ट, या नाइन, माइन फोर नामो इस्ट पीटर। द नेक्स्ट लास्ट वाला मोमेंट ich bin Hans Meyer। सो दिस इज समथिंग अबाउट फोर नाम उन नाम। ठीक है, दो लोगों के एक साथ जैसे नाम है तो मायर पीटर वट एवर इट इज, तो उसमें हमें किसी फोर नाम और नाकनामा का यूज किया था, ऐसा है। सो सिमिलर कॉन्वर्सेशन फॉर प्रैक्टिस यू कैन डू, अपने आप से लिख के, अपने आप से बात करके प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो। देन ये कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस है जिसमें 10 वेटर इस्ट शॉन उन दी जोन, और क्या कर सकते हो, इसको कंप्लीट कर लो, ये वाला जो है फर्स्ट वाला। Try to write in your notebook, and then we'll write again in the chat box. Please take some time and write.
डन। सॉरी राहुल, मैंने आपका मैसेज मिस कर दिया था। आप इसके लिए पूछ रहे हो Man kann die Sonne nicht sehen, और ये पहले वाला है स्काई। प्लीज लेट मी नो वंस यू आर डन। डन। या ऑर्डर 9। ओके।
अर्णव हो गया आपका भी? You can just write the answers in the chat box, then I'll read the sentence. Das Wetter ist schön und die Sonne. Ah, sehr gut. I'll check. The Sonne scheint. Was bedeutet scheint? So, sun is shining. Then ich muss einen Regenschirm mitnehmen. Mitnehmen is to take with me. तो ये यहाँ पे देखो, जैसे हमने मोडल वर्बन और मेन वर्ब ऐसा लिया था, वैसा इसका ये एग्जांपल है. Ich muss einen Regenschirm mitnehmen. तो जो मेन वर्ब है दैट इज विदाउट कॉन्जुगेशन इनफाइनाइट फॉर्म में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड मोडल वर्ब जो यहाँ पे म्यूसन है, म्यूसन इज मस्ट. तो उसका कॉन्जुगेटेड फॉर्म मतलब जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा. इश मूस, दू मूस्ट, एरजेस, म्यूसन, वियर. तो जैसे भी आप लोग आप एरजेस मूस्ट, जैसे आपका ये चेंज हो जाएगा वैसे ही यहाँ पे चेंज दिखेगा. और जो मेन वर्ब है जैसे मिट नेमन इज टू टेक विथ यू. तो ich muss einen Regenschirm mitnehmen. Draußen बाहर डैश डैश एस, सो regnet. Regnet is raining. Man kann die Sonne nicht sehen. Uh, people are unable to see sun. Their Himmel is sky. So the sky is bewölkt. Bewölkt is cloudy. मतलब बाहर का एनवायरनमेंट क्लाउडी है, इसके लिए सन दिख भी नहीं रहा है. Die Straße und alle Häuser sind weiß. Es dash dash schon seit Stunden. Es schneit. Schneit is snowing. So बहुत टाइम से स्नो फॉल हो रहा है, इसके कारण सब कुछ व्हाइट दिख रहा है. The Kinder müssen im Haus bleiben. Bleiben is to stay. So यहाँ पे भी देखो, अब जैसे die Kinder ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सो सेकंड पोजीशन पे मोडल वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म आया, सो दैट वाज म्यूसन. थर्ड सेंटेंस में भी मान कान आया था, क्योनन. क्योनन इज कैन, तो उसका भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में. यहाँ पे भी म्यूसन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आया है. इम हाउस ब्लाइबन, टू स्टे इन द हाउस. एस गिफ्ट ग्लाइश आइन गेविटर. व्हाट बेडेटेड गेविटर? Thunderstorm. So it is with respect to, everything is with respect to weather. So Kinder müssen in Haus bleiben. बच्चे लोगों ने घर पे ही रहना चाहिए. Why? Because es gibt gleich ein thunderstorm. So es ist schrecklich kalt. Nacht ist die Temperatur nur 10 ग्राड माइनस. सो इतना कम टेम्परेचर है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है. टेरिबल कोल्ड है. श्रेकलिश इज टेरिबल. तो मतलब एक तो इसका फायदा है कि ग्रामेटिकली आप चेक कर सकते हो, जैसे मोडल वर्ब का यूज किया है, पर्सनल प्रोनाउन के साथ वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट किया है. एंड द मेन थिंग इज वोकेबुलरी. जब तक वोकेबुलरी बिल्डअप नहीं होगी तब तक आप वो वर्ड यूज नहीं कर सकते हो. बट जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, मेक अ लिस्ट ऑफ देम एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और फिर जब भी कभी मन करे उनको पढ़ लेना, सो दैट दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके. सिमिलरली यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, यू कैन रेफर टू देम. अदरवाइज एक टेक्स्ट बुक है, मतलब जहाँ से मैंने ये रेफर किया है, लगुना करके टेक्स्ट बुक आता है. उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है कोर्स बुक. कोर्स बुक मतलब जहाँ पे आपको सिख पढ़ाया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं. और फिर बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी अ अर्बाइट्स बुक. वो बंच में कोर्स बुक में आपको जैसे कोर्स बुक होता है वैसे ही रहेगा. अर्बाइट्स बुक की जो भी चीजें दी है उनके अलग अलग एक्सरसाइजेस होंगे, जैसे हम अभी हमने लेक्चर्स में किए हैं सिमिलरली. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ, सो आप ये लकुना का टेक्स्ट बुक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, so you can either use that. Okay, my screen sharing was stopped. One moment.
Yeah. So this is the PDF that you can observe. Okay. ये अब जैसे लगुना का कोर्स बुक है, so it is freely available online. So you can either see the full PDF or download the PDF and then use it. और इसका हार्ड कॉपी में टेक्स्ट बुक आता है जो अराउंड आई थिंक 1000 रुपीज तक होगा. तो यू कैन यूज दैट बुक ऑल्सो फॉर द रेफरेंस कि मतलब उसमें सब कुछ एवरीथिंग विल बी इन जर्मन लैंग्वेज. बट जो हमने पढ़ा है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने भी इसी बुक में से रेफर की है. इसके साथ आपको एक सीडी मिलेगा, वो सीडी में यू कैन प्ले दैट सीडी टू हियर द साउंड. मतलब जब आपको अगर एग्जाम्स देनी है जर्मन लैंग्वेज की, एडवांस एग्जाम्स देनी है, तो फिर उसमें आपको ऐसा एक एक्सरसाइज होता है जहाँ पे सामने से सीडी प्ले करते हैं, वहां पे लोग कुछ बोलेंगे एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर. ओके. तो वो एक्सरसाइजेस के लिए, या फिर हमें अगर बात करनी है तो उसकी कोशिश के लिए. तो हमेशा जब ये एग्जाम्स होती है तो ये एग्जाम में एक पार्ट होता है रिटन एग्जाम एंड द अनदर पार्ट इज वाइवा. तो वो वाइवा में आपको इंटरेक्शन देना होता है कि अगर एकदम बेसिक लेवल का एग्जाम है, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. डिपेंडिंग ऑन दैट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. फिर वो कुछ पूछते हैं तुम लोग को कि कैसे कुछ डायलॉग इनिशिएट करते हैं, सो यू हैव टू गिव बैक देम आंसर्स. ऐसे एग्जाम में पार्ट्स होते हैं. ओके. तो उसके लिए आपको ये जो बुक है दैट विल हेल्प कि आप तैयारी कर रहे हो, अगर अपने आप से कर रहे हो देन यू कैन डू. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना हमने पढ़ाई की है और थोड़ा सा अगर ये बुक आप रेफर करते हो, सो यू कैन गिव एग्जाम टिल A1 लेवल. ओके. जो ग्योथे इंस्टीट्यूट है, जो मतलब वहाँ की एक्चुअल एग्जाम्स लेते हैं, उसके लेवल्स होते हैं. A1 लेवल, A1 इज वेरी बेसिक, देन A1, A2, B1, B2, C1, C2. C1, C2 मतलब एकदम एडवांस रहेगा वो. C2 मतलब तो आपको मतलब जर्मन जाके वहां पे पढ़ाई करके देन यू हैव टू गिव द एग्जाम. तो जो बेसिक लेवल का A1 एग्जाम है, आई थिंक यू कैन गिव दैट. मतलब ये बुक रेफर करो आप. ये बुक अच्छा है फॉर A1 टिल A1 लेवल. ओके. वहाँ के क्वेश्चंस इसी में से कुछ, तो जैसा बेसिक ग्रामर हमने जहाँ तक पढ़ा है, जितना वोकेबुलरी हमने कवर किया है, उसमें से ही कुछ तो वो एग्जाम में होता है. थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट और जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को ज्यादा लगेगी वो यूरेन का है, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि मैं आपको कुछ ऐसे सुना नहीं पाई. जैसे ये सीडी आती है, तो उसमें से अगर आप कुछ सुनते हो देन इस बुक में आप लोग देख सकते हो कि कहीं कहीं पे ये देखो, ये सीडी का ऐसा इस पे पिक्चर निकाला है एंड 1 आउट ऑफ 5. सो विच पोर्शन ऑफ दैट सीडी यू हैव टू प्ले. तो वो प्ले करके वो सीडी का वो पोर्शन आप प्ले कर सकते हो और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं. ओके. सो यू हैव टू मार्क कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट होगा. वो वहां सीडी में से सुन के आपको वहां पे मार्क करना है कि 1 2 3 4 5 कैसे सीक्वेंस में उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया है. तो जो फर्स्ट बुक है उसमें करेंगे, क्योंकि एवरीवन इज न्यू टू द लैंग्वेज. वो हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा वो लैंग्वेज यूज किया है. एंड देन यू हैव टू सी कि आपको कितना जम रहा है. सिमिलरली प्रैक्टिस के लिए जैसे ये कोर्स बुक है, सिमिलर फॉर्म में ऐसे ही पीडीएफ के फॉर्म में अर्बाइट्स बुक करके आएगा. जो मैंने दोनों नाम अभी मैसेज में लिया है, लगुना कोर्स बुक और लगुना अर्बाइट्स बुक. यू कैन गूगल देम, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ और सी द पीडीएफ. और वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. कुछ भी अगर डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी एनी टाइम. आपको कोई भी आगे जाके कोर्स करना है, मतलब कोई भी एग्जाम देनी है A1 A2 लेवल की, तो जितना मुझसे हो पाएगा आई टीच यू. मतलब जब अगर पॉसिबल होगा तो सिखाऊंगी, या फिर कोई मेरे सोर्सेस होंगे जहां से आपको ये टीचिंग या कुछ अवेलेबल हो सकता है, आई गाइड यू. सो आप लोग ये टेक्स्ट बुक या अगर कोई और आपको अच्छा लगता है, यू कैन यूज दोज टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो. ओके. एनी डाउट? एक्चुअली दैट इज नॉट अ नेसेसिटी. मतलब आप अगर जब अप्लाई कर रहे हो ना, तो यू हैव टू सी. कभी कभी अब जैसे इंग्लिश कॉमनली यूज लैंग्वेज हो गई है, तो अगर आपका बाकी का एक्सपीरियंस और ये सब अच्छा है देन दे कैन टेक यू. दैट विल बी एन एडिशनल बेनिफिट. ओके. दैट आपको ये लैंग्वेज का यहाँ तक सर्टिफिकेट भी है आपके पास. इवन मतलब ऐसा भी कंसिडर करते हैं कि तुम्हारे पास A1 का भी सर्टिफिकेट है, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि A1 का सर्टिफिकेट है तो बेसिक लैंग्वेज तो आ रही है तुम्हें.
ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यहाँ तक पढ़ना ही पड़ेगा तभी आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। विदाउट लर्निंग एनीथिंग अबाउट जर्मन लैंग्वेज यू कैन गो देयर, बट मतलब अब इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि दिस विल बी एन एडिशनल बेनिफिट कि आपको ये लैंग्वेज भी आ रहा है, एटलीस्ट बेसिक तो आ रहा है, कुछ तो कॉन्वर्सेशन कर पाओगे आप वहां पे जाके। सो ये एक है। और दूसरा मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, अगर आपको A1 A2 लेवल्स नहीं देने हैं देन यू कैन डू देयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड एडवांस सर्टिफिकेट कोर्सेज, सॉरी एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज। तो मतलब एज गुड एज ग्रेजुएशन इन जर्मन लैंग्वेज ऐसा होता है। आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज, बट पुणे यूनिवर्सिटी एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के ये कोर्सेज अवेलेबल है, 3 ईयर का कोर्स होता है। ओके, एनीथिंग एल्स? Same value as in for what you are asking, like for diploma degree and yes, yes, like A1, A2, A3, yes, yes, it has same value. आई I मीन वो ग्रेडेशन रहेगा कि आपने डिप्लोमा किया है तो आप A2 तक पढ़े हो, क्योंकि मतलब बुक्स और ये सब तो सेम ही रेफर करते हो ना, तो उस हिसाब से वो कंसिडर करते हैं वो डिग्री को भी। ऐसा नहीं है कि उन्हीं का एग्जाम मतलब एकदम परफेक्ट माना जाएगा। आप अगर डिप्लोमा के बेसिस पे वहां पे अप्लाई करते हो देन ऑल्सो दे विल कंसिडर, चाहे तो वो एक और एग्जाम ले लेंगे कि तुम्हारा मतलब जो तुमने पढ़ा है क्या, वेदर इट इज सिमिलर टू दैट, ये चेक करने के लिए वो एक एग्जाम ले सकते हैं आपका। ओके, सो दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर, बट यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनी टाइम। अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कुछ कोर्सेज करने हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपने टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लिया एंड यू आर प्रैक्टिसिंग नाउ, कोई भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो कभी भी। ओके, आई होप कुछ बेसिक लैंग्वेज के बारे में आपको पता चल गया होगा ये कोर्स से। Yeah, so for now, thank you and bye. Danke und tschüss. Rahul, all doubts are cleared or you have to ask something? ओके राहुल, थैंक यू एंड प्लीज मतलब आपको अगर कुछ भी डाउट्स होंगे, आप वहाँ पे जाके काम करने के लिए आपकी इच्छा है, सो आप अगर कुछ चाहते हो हेल्प तो आई कैन हेल्प यू, बिकॉज मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स है जो लोग वहाँ पे जाके कुछ आगे का पढ़ाई कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग मोर so then also we can help you. Okay, thank you. Yeah, thank you.